یار اگر اس طرح بندرباٹ کریں گے آپ کے اثاثوں کو، آپ کی زمین کو اٹھا کے لے جائیں گے تو آپ عہدوں کی خاطر بیٹھیں گے؟ حکومت پاکستان کو اپنے تمام اخراجات نکال کے نیٹ پروفٹ 6 کروڑ سالانہ گلگت بلتستان سے وہ اٹھا رہے تھے، ان کے ساتھ پی ٹی ڈی سی کے ساتھ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کا شکار پاکستان بھی ہوا ہے، کیونکہ 6 کروڑ روپے پاکستان کو سالانہ نقصان ہوا 2 سال سے۔ لیکن ایک بات ہے، گلگت بلتستان کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ آپ کہتے ہیں ان کے احساسات کو فروغ کریں، کیا کرو؟ یہ گلگت بلتستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ یہاں کے عوام کی جاگیر ہے، اس کے اندر احساسات عوام کے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں خالد حسین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں کچھ ایسے ادارے جو وفاقی حکومت جو ہے اس کو فروخت کر رہی ہے، اور اس وجہ سے گزشتہ 2 سال سے یہ ہوٹلز جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، پی ٹی ڈی سی ہوٹلز جو گلگت بلتستان کے تمام ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں سے حکومت پاکستان سالانہ کروڑ روپے کماتی ہے، اور گزشتہ 2 سال سے یہ بند پڑے ہیں۔ یہ کیوں بند پڑے ہیں؟ ان کو لیز پر دینے کا یا ان کو فروخت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف حسین صاحب، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے GMN کے اینکر پرسن ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، ویلکم ٹو GMN۔ سر، کیا ماجرا ہے؟ حکومت پی ٹی ڈی سیز کو کیوں فروخت کر رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا قومی اثاثات کو اس طرح فروخت کرنا کیا واٹ از دا ریزن؟ شکریہ خالد صاحب، GMN کے پلیٹ فارم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس قسم کے ایک اہم ایشو کو عوام کے سامنے لا رہے ہیں، اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے یہ گلگت بلتستان کے عوام کی جائیداد ہے، اور اس کے بارے میں فیصلے کدھر ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ پی ٹی ڈی سی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ 1972 میں جو بھی حکومت تھی انہوں نے یہ پی ٹی ڈی سی کو قائم کیا تھا اور اس کو ٹورزم منسٹری کا انڈر دے دیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان سے ڈومیسٹک ٹریولرز آتے ہیں ان کو بھی سہولت دی جائے، اور خاص کر انٹرنیشنل ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے۔ اور ساتھ میں اگر ولجیز کا بھی ذکر کروں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ پی ٹی ڈی سی اور ولجیز 2 ادارے ایسے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ٹورزم کو پروموٹ کیا ہے، کیونکہ ولجیز کو یہ حاصل ہے کہ وہ اس گلگت بلتستان کا پہلا ٹور آپریٹر رہا ہے، اور پی ٹی ڈی سی 9/11 سے پہلے تو ان نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ آگے چلیں۔ بالکل۔ اچھا، 1972 میں یہ قائم ہو گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا ٹورزم کو پروموٹ کرے، بلائے ہمارے ان علاقوں میں ٹورسٹ آ جائیں، اس علاقے کی حالت بہتر ہو۔ ٹورسٹ آ گئے تو ان کے ساتھ کئی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں، وہ تو آ کے خرچہ کر کے جاتے ہیں، یہاں پر پیسہ آتا ہے علاقے میں۔ یہ 18 امینڈمنٹ کی جب 2013 میں 18 امینڈمنٹ کی بات ہو گئی تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ٹورزم صوبائی سبجیکٹ ہونا چاہیے، صوبوں کے حوالے کریں۔ ٹھیک۔ اگرچہ گلگت بلتستان کو 2009 سے صوبہ کہہ رہے ہیں، اس امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو انہوں نے حوالہ کیا، لیکن اس کو صوبہ کہہ رہے ہیں، پھر تسلیم بھی نہیں کرتی حکومت پاکستان، خود نہیں کر رہی ہے۔ یہاں فرق اتنا ہے کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ذکر آیا، انہوں نے کہا کہ ان کے جو پی ٹی ڈی سی کے ہوٹلز ہیں ان کو فروخت کریں یا لیز پہ دے دیں۔ اس سے پہلے ایک کمیٹی بنائی، صوبائی کمیٹی بنائی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ کچھ عرصہ اس طرح چلا گیا اور یہ فیصلہ نہیں کر سکے تو پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر دے دیا کہ آپ لوگ اس کا کچھ کریں۔ یہ حالت ہے ہماری گلگت بلتستان کی اثاثات کی۔ ان سے بھی نہیں ہوا تو وہاں تو منسٹری آف پی ٹی ڈی سی کے ملازمین تھے، ان کو تو مختلف محکموں میں کھپایا گیا۔ یہاں کے جو پی ٹی ڈی سی کے ہوٹل تھے ان کے ملازمین کو بھی برطرف کر دیا ہے انہوں نے۔ اچھا سر، یہ واحد ادارہ ہے پی ٹی ڈی سی جو گلگت بلتستان کے ہر اضلاع میں موجود ہے، اور اگر ٹورزم کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو سالانہ جو ہے ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں، اور اس کا ریونیو جو ہے پچھلے سال مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ 6 کروڑ سے اوپر جو ہے نا ان کے جو یہ حکومت پاکستان کو دیتے ہیں اپنے اخراجات جو ہے ایکسپینڈیچر کو الگ رکھ کے۔ یہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فروخت کر رہے ہیں خان صاحب کے اس طرف کیوں؟ ایک تو وہ کہہ رہے کہ ٹورزم کی بات کر رہا ہے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو پروموٹ تو آپ کے پاس اچھے ہوٹلز ہوں گے تب پروموٹ ہوگا۔
बदकिस्मती हमारी ये है, फैसले जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे इस किस्म के अहल लोग नहीं है कि इसको जांचे, इसको एनालाइज करें। फैसला करने से, किसी चीज़ के बारे में फैसला करने से उसको तब्दील करने के लिए किया जा रहा है, उसकी हैत को तब्दील करने के लिए जा रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को तब्दील करने के लिए किया जा रहा है, तो उससे पहले मंसूबा बनता है कि इसके लिए इस तरीके से करेंगे तो दूसरा हम एक ऑप्शन हमारे पास होगा, हम इसको इस तरह के बगैर मनसूबाबंदी के पीटीडीसी होटल को सूबों के एक सूबों में मनसूबाबंदी की, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के बल्तिस्तान के बारे में कहा यह कमेटी फैसला करेगी। सूबाई कमेटी को दिलचस्पी क्यों होगी? उनके हम में दिलचस्पी उनको नहीं, उनसे नहीं हो सका। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले किया जिस तरह मैंने अर्ज़ किया। अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के बाद फिर यही चीज़ सामने आ गई कि इसको या तो लीज़ पे दे रहे हैं या फ़रोग कर रहे हैं। जब लीज़ का नाम सुना तो मेरे दिल में घनसारा सिंह याद आ गया कि डोगरा राज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को लीज़ पे देता था। ये गिलगित बल्तिस्तान के असासजात हैं। हमारे नुमाइंदों को चाहिए सीना सपर होकर खड़े हो जाए, इन असासजात को बचाएं लीज़ पे देने से या इनको फ़रोग करने से। इनको फ़रोग नहीं कर सकते। ये मैं डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर मैंने देखा है डॉक्यूमेंट को, जहाँ भी पीटीडीसी ने ज़मीन ली है वहाँ पर एक एग्रीमेंट की हुई है वहाँ कम्युनिटी के साथ कि उन लोगों जिनकी ज़मीन को इन्होंने मुशर्रफ पिलाए उनको मुलाजमत देंगे, और उनको उस हिसाब से उनको मुलाजमत दी गई है। आज ये किसी और को फ़रोग करेंगे तो क्या वो गारंटी देता है कि इसको इंश्योर करे कि उन्हीं मुलाजमीन को रखे? अच्छा, जब ये फ़रोग करने का मरहला आ गया तो मुलाजमीन, यहाँ 60 मुलाजमीन हैं। ये इनका एक एक करके बता सकता हूँ मैं। होटलों का आपको खपलू से स्टार्ट करता हूँ। पीटीडीसी खपलू में है, नाले में है, सतपारा लेक पे है, सिकरदू में है, इस्तक नाले में है। फिर यहाँ गिलगित आ जाएँ, गिलगित में है। आप हुंजा की तरफ जाएँ, हुंजा में है, सुस्त में है, आपके गिज़र में, गुपिस में, जंडोड के मकाम पे है, फंडर में है। इतने बड़े होटल चल रहे हैं। आपने जहाँ प्रॉफिट की बात की बिल्कुल सही है, गलत नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि ये मुलाजिम यहाँ इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को, गिलगित को तो वो नहीं मिल रहा था, वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट उठाती थी। हुकूमत पाकिस्तान को अपने तमाम अखराजात निकाल के नेट प्रॉफिट 6 करोड़ सालाना गिलगित बल्तिस्तान से वो उठा रहे थे। इनके साथ पीटीडीसी के साथ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो जुल्म किया है उस जुल्म का शिकार पाकिस्तान भी हुआ है, क्योंकि 6 करोड़ रुपए पाकिस्तान को सालाना नुकसान हुआ 2 साल से। सालाना, बिल्कुल। अच्छा सर, कोई ऐसी कानूनी हिच जो गिलगित बल्तिस्तान की इस प्रॉपर्टीज़ को, इस असाजात को फ़रोग सेल आउट करने से रोक सकती है? क्या ऐसा कोई मौजूद है लॉ? मैं आपको हाशवानी की मिसाल दे दूंगा। हाशवानी ने पीटीडीसी ने जेल के साथ, गिलगित पुराने जेल के साथ एक ज़मीन खरीदी। पीटीडीसी ने खरीदा था। बाद में पीटीडीसी ने छुपा के वो फ़रोग करने की कोशिश की। हाशवानी को तो लोग अदालत में गए कि भाई ये तो इस मकसद के लिए पीटीडीसी को दिया था, होटल बनाने के लिए, ये फ़रोग क्यों कर रही है? जब ये हो गई तो हाशवानी को लोगों से ला के पीटीडीसी और हाशवानी दोनों ने मिल के लोगों के साथ बात की, उनको मनाया, कुछ ले दे हो गया। लेकिन मुआहदा उनके साथ हाशवानी ने भी ये करना पड़ा कि जिनकी ज़मीनें यहाँ गई है या जिस एरिया में ये होटल बना रहे हैं वहाँ उनकी मुलाजमतों में उनको तरजीह देंगे। ये एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को भी मैंने देखा, मैं कराने वालों में से एक शख्स हूँ। मैं और शहीद सैफुर रहमान ने ये एग्रीमेंट। अच्छा सर, ये इस तरह फ़रोग नहीं कर सकते, कानूनन नहीं कर सकते। ये फ़रोग किस तरह करेंगे? लीज़ पे कहा तो मैंने सुना कई बड़े ऐसे फन्ने खान आ गए कि उन्होंने कहा कि हम इसको लीज़ पे उठाएंगे या ख़रीदेंगे। जो आप के साथ थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, कहीं गंडापुर का भी नाम आ गया। हाफिज़, मैं उसी तरफ आ रहा था। अभी आपसे कुछ देर पहले प्रेस क्लब में साबिक़ वज़ीर आला हाफिज़ रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पर उसे इल्ज़ाम लगाया गंडापुर और परवेज़ खटक पर कि ये ख़रीदना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के तमाम पीटीडीसी होटल्स को। तो इसमें कितनी सदाकत है? इसके बारे में मैं कन्फर्म मैं नहीं कह सकता कि वो दोनों ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन लाजिमी बात है यहाँ के सियाह और सफ़ेद का मालिक है इस वक्त मिनिस्टर पाकिस्तान का कश्मीर अफेयर्स का, वो वहाँ बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है जो नुमाइंदे हमें सलीम भेजते हैं उनको गैरत क्यों नहीं आती है अपने जायदाद पे। आज तो मैं यही कहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब और पूरी असम्बली के मेम्बरान को अपनी जायदाद की हिफाजत करें, गैरत करें। ये गैरत का मकाम है।
PTDC को 2 साल से बंद रखना और मुलाजिमों को इन्होंने 2020 से फारिग कर दिया है, आज तक उनकी वाजिबात अदा नहीं की। आज तक उनकी वाजिबात भी अदा नहीं। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा किया कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इसका हमारे इनको नुमाइंदों को चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएं। अगर ये नहीं समझा सकते हैं तो हमें ले जाएं। आपके हम सूबे का चीफ हुकूमत एग्जीक्यूटिव को हाफिज जो है बिल्कुल खामोश है इस पर, आवाज़ तो उसको उठानी चाहिए। अगर अपने मफाद को तरजीह नहीं देते, अपने हल्फ के मुताबिक ज़ाती मफादत को तरजीह नहीं दे के कौमी मफादात को तरजीह देंगे कि हल्फ उठाया है, अगर वो अपनी हल्फ की पासदारी करते हैं तो अपने ओहदे की परवाह न करें। वह तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ज़िल्लत और रुसवाई तो अल्लाह की तरफ से। क्या आपने हल्फ उठाया, हल्फ की पासदारी नहीं करेंगे तो क्या रुसवाई नहीं आएगी? वो भी रुसवाई, वो अल्लाह ताला का इंतकाम होता है। देर आयत दुरुस्त आयत होता है। लेकिन इनको चाहिए कि असेंबली के हमारे जो मौजूद मेंबरान हैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे सब कुछ को जानता भी हूँ, मैं कुछ को नहीं जानता हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन उनको बताना चाहता हूँ, गिलगित के अवाम को बराह रास्त मुखातिब होकर आज बताता चाहता हूँ, अपने असासजात की हिफाजत करें। नहीं करेंगे तो हम सीनियर सिटीज़न जो है ये ज़रूर दूसरे एक कोर्ट में हम भी चले जाएंगे अपने जायदाद को की हिफाजत के लिए। अगर ये नहीं संभाल सकते PTDC को तो ये कहें ये नहीं संभाल सकते, फिर हमसे मशवरा ले लें, हम बताएंगे किस तरह का क्या करना है। अगर इनको समझ में नहीं आ रही तो हम असासजात को फ़रोग करने या लीज पे दे के किसी और गनसारा सिंह के मातहत होना नहीं चाहेंगे। ये गिलगित के आवाम को बताना चाहता था मैं। तो अगर इसकी हिफाजत के लिए आप लोग सामने नहीं आएंगे तो वही हशर होगा जो पहले महाराजे के वक़्त में होता रहा था। हमें गैरत करनी चाहिए, इसके लिए आगे आना चाहिए। और मुलाजमीन कोर्ट में इसलिए गए हैं कि उनके वाजिबात अदा नहीं हुए, जिसकी वजह से स्टे ऑर्डर हुआ। हो सकता था खटक साहब खरीदते, हो सकता था गंडापुर साहब खरीदते या जुल्फी बुखारी खरीदते। मैंने जुल्फी बुखारी का सुना था, आपने खटक का बता दिया। अभी ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं, ये कन्फर्म तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये सलूक ना करें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ। आप कहते हैं इनके असासजात को फ़रोग़ करो, क्या करो? ये गिलगित बल्तिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये यहाँ के अवाम की जागीर है। इसके अंदर असासजात अवाम के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक है। आप इसको किसी तरह फ़रोग़ भी नहीं कर सकते, लीज पे भी नहीं दे सकते। मुलाजिमीन को बहाल करें और इसको चलाएं। दूसरा एक बड़ा इशू है, ये तो आगे PTDC की बात हो गई, ये प्रॉपर्टी से गिलगित बल्तिस्तान की। ज़ाहिर है यहाँ के लैंड जो है लैंड का अमल दखल है। ज़मीन आप जब किसी से लेते हैं तो उसके भी कोई बाइलास होते हैं, उसके कोई कानून के अंदर जो है ना कुछ इस तरह की प्रोविजन मौजूद होती है कि आप किसी ज़मीन लेते हैं तो उस पर जो है ना आपने कुछ मुकामी लोगों के लिए भी आपने रखना है, जिसने मुलाजमतें आपने तो तस्करा किया। अब ये द्यामर बाशी डैम की मैं बात करने जा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो हदूद बंदी है, एक वो है, एक शंदूर का है। ये मुसलसल कई सालों से इसका तनाज़ा कमेटी कोई एक ऐसे फैसले पे नहीं पहुंच सकी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान या KPK को जो है इसमें बीच में कोई इस तरह दरमियान वाला रास्ता अख्तियार करने के लिए। अब ये वायलेशन भी हो रही है, हम वायलेशन भी कह सकते हैं कि KPK जो है गिलगित बल्तिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो रहा है आहिस्ता उसमें बाशी डैम की हदूद से भी और शंदूर से भी। तो ये क्या माजरा है? क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग कमज़ोर पड़ गए हैं? खालिद साहब, आपने एक ऐसी बात की छेड़ी है कि मैं फिर बहुत ही आपने जज्बाती नहीं होना है, लेकिन आपने जज्बाती होना पड़ता है। ये आपको एक किस्सा सुनाऊँ मैं। 1974 में KPK के साथ बॉर्डर पर डिस्प्यूट था। मैं इजलास में उस वक्त मुलाजमत में था, एक डिप्टी कमिश्नर के साथ साइट विज़िट करने गए। वहाँ से भी कोहिस्तान की तरफ से एक डिप्टी कमिश्नर आया था और एक SP आया था। तो जब ये बात हो रही थी तो मैंने ज़मीनी तौर पे वहाँ एक बात हो गई, मेरे साथ और भी थे, असिस्टेंट कमिश्नर भी था ना, मैं नहीं लूँगा उस वक्त डिप्टी कमिश्नर जो भी था, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर यहाँ का नहीं था। तो वहाँ बात हो गई। मैंने कहा देखें, हम बशे से नहीं आगे शतियाल से तांगीर और दारेल जाते हैं तो शतियाल तक गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्री होनी चाहिए ज़मीनी तौर पे। मेरा इतनी सेध नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे एक बात की तो उस वक्त उस डिप्टी कमिश्नर साहब ने यही कहा, यार ये पाकिस्तान में जा रहा है ना, ये भी तो पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान, सिर्फ बॉर्डर की सेटलमेंट करें। ये बहुत ख़तरनाक बात है, इसको जहन में रखें। इसी बहाने से इन्होंने छेड़ा शंदूर को। 1981 से पहले टूर्नामेंट कराने वालों में मैं हूँ।
2 डिस्ट्रिक्ट कौंसलों ने आपस में करवाया। वहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट कौंसल के चेयरमैन आवाम मुत्तफिक हो गए कि ये बाउंड्री है, क्या, शंदूर पुलुग्रोन, उस तरफ वो बैठते हैं, इस तरफ हम बैठते हैं। और बाद में मैं किसी वक्त वहाँ मुलाजमत में रहा, मैंने यूनियन कौंसल टेरू का बोर्ड लगवाया। चेयरमैन अगर ज़िंदा है तो उससे पूछ सकते हैं कि इस तरफ से जाने वालों के लिए खुदा हाफिज़ यूनियन कौंसल टेरू, चतराल से आने वालों के लिए खुश आमदीद यूनियन कौंसल टेरू। कुछ अरसे के बाद वो रहा बोर्ड वहाँ, कुछ अरसे के बाद उसको उठाया गया और ये तनाज़ा वहाँ भी खड़ा कर रहे हैं। या अल्लाह, अब तू ही फैसला कर इनके साथ, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इतने कमज़ोर न समझें, गिलगित बल्तिस्तान को अपने हकूक़ की हिफाजत करना जानते हैं। और मुझे उम्मीद है मौजूदा असम्बली और अरकान असम्बली से, यार अगर इस तरह बंदरबाट करेंगे, आपके असासों को, आपकी ज़मीन को उठा के ले जाएंगे तो आप उहदों की खातिर बैठेंगे। खुदा का हाथ जोड़ता हूँ, आपने ज़मीन और अपने असासजात की हिफाजत करें जिसके लिए आपने हलफ उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हुसैन साहब, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा फीडबैक दिए इसने। और यकीनन मेरी खान साहब से एक इल्तिजा भी है कि ये जो जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में PDDCs होटल हैं, जो अब से कुछ देर पहले आसिफ हुसैन साहब ने गिनकर बताया कितने थे, तो ये इदारे जो हैं बहुत फ़ायदेमंद हैं। यहाँ से लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है। और फिर आप एक तरफ कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सियाहत का हब बनाएंगे, तो जब तक अच्छे होटल्स और अच्छे मोटल्स नहीं होंगे गिलगित बल्तिस्तान में, तो मेरे ख्याल में सियाह इस तरफ नहीं आ सकते हैं। और एक तरफ जो है बहुत सारे ख़ानदान वाबस्ता हैं, तो लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि इस फैसले को जो है आप दोबारा वापस लें और गिलगित बल्तिस्तान के PDDC होटल्स हैं, इनको दोबारा बहाल करें। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान खालिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।